Morning to all of you, beta. I hope you all are fine. Welcome to the social science class. See, beta. In the previous videos, we have discussed about the chapter number 4. Now, today, we will discuss about the further part of the chapter. So, now, today we will discuss about the Shahjahan time period AD 1627 to 1658. See, beta, after the death of Jahangir, there was a war of succession among his son, and in AD 1628, Prince Khurram ascended the throne, and he took the title of Shah Jahan, the ruler of the world. The meaning is of Shah Jahan is the ruler of the world. After this beta conquests, in AD 1628, Jujhar Singh, a Bundela chief, rose in revolt in Bundelkhand and he was defeated and later killed. Afghan noble Khan Jahan Lodhi, the Subedar of Deccan, also rebelled and he was also defeated and killed. And Shah Jahan wanted to bring the three states of the Ahmednagar, Bijapur, and the Golconda. The Bundelas were defeated and Orcha seized. Seized means बिल्कुल सील कर देना बेटा. He therefore appointed Aurangzeb as the Subedar of Deccan. Ahmednagar was conquered in 1632 and Bijapur agreed to pay an annual tribute. That means शाहजहाँ ने जो भी एरियाज जस्ट लाइक अहमदनगर बीजापुर गोलकोंडा बुंदेलखंड इन एरियाज़ को अपने कंट्रोल में किया. And after this, beta, a new policy, the Northwest policy. In this policy, beta, Shah Jahan wanted to reconquer the territories in Central Asia. He wanted to capture Balkh and Badkhshan. It would enable him to invade Samarkand, which was the home of great ancestor Timur beta. But the Mughal army has to give up due to mountainous region and hostile climate condition. But जो मुगल आर्मी थी बेटा वो माउंटेनियस रीजन होने की वजह से और ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से वहाँ तक इजीली पहुँच नहीं पा रही थी. एंड शाहजहाँ ऑल्सो वांटेड टू कैप्चर कांधार and he sent a powerful expedition under औरंगजेब. औरंगजेब के कंट्रोल में उसने उसको एक्सपेंड किया एंड द एक्सपीडिशन failed due to superior artillery of the Persians. Thus campaigns against Balkh and Kandahar failed. एक पॉलिसी जो इसने शाहजहाँ ने चलाई थी बेटा बट उसका जो कैंपेनिंग था वो फेल हो गया. रीज़न दिस कि जो उसकी मिलिट्री थी इतनी सुपीरियर नहीं थी पर्सियन के अगेंस्ट, उससे ज़्यादा पर्सियंस की सुपीरियर थी. दैट वाई these campaigns against Balkh and Kandahar failed. Now, relation with the European traders. See, beta, in this topic, the European traders were merely looked upon as traders as the Mughal rulers. In the last topic, I have told you that at that time of the Jahangir, the European traders were in India. And now they were also merely looked upon as traders by Mughal rulers. In 1657 to 58, there was a conflict amongst Shahjahan's son over succession. बेटा इन लास्ट शाहजहाँ और औरंगजेब के बीच शाहजहाँ के बेटों के बीच में और उसके नेक्स्ट सक्सेसर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना विवाद होना शुरू हो गया. एंड इन दिस औरंगजेब वाज victorious and his three brothers including Dara Sukho were killed. शाहजहाँ was imprisoned और शाहजहाँ को जेल में डाल दिया था बेटा औरंगजेब ने. और नेक्स्ट सक्सेसर जो बना he was the औरंगजेब. So after this beta, in the next we will read about the Aurangzeb time period AD 1658 to AD 1707. See beta, Aurangzeb was the last great Mughal ruler. सबसे लास्ट ग्रेट मुगल रूलर्स तो रहे हैं उसके बाद बट लास्ट रूलर एक इफेक्टिव लास्ट रूलर माना जाता है उसे. एंड ही रूल्ड ओवर 50 ईयर्स टिल AD 1707. इन नॉर्थ इंडिया बेटा इन नॉर्थ इंडिया द रिवोल्ट वाज लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन्स. जो रिवोल्ट था
औरंगजेब का वो कुछ लिमिटेड रीजंस तक ही रह गया था. एंड औरंगजेब हैड इंक्रीज द लैंड टैक्स टू वन ऑफ हाफ ऑफ द प्रोड्यूस. वो इतना पॉपुलर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने जो लैंड टैक्स था वो इंक्रीज कर दिया. वन हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, जितनी भी प्रोड्यूस हुई है उसकी हाफ परसेंटेज, मतलब 50% से परसेंटेज तक. सो दैट्स वाई ड्यू टू द हाई लैंड टैक्स द जाट पीजेंट्स ऑफ आगरा मथुरा रीजन रिबेल्ड अगेंस्ट हिम एंड द सतनामीज एंड द बुंदेलाज ऑल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब. सो सी बेटा, रिलेशन विद राजपूत, सिख्स एंड मराठास. मुगल्स के कैसे रिलेशंस रहे हैं राजपूत के साथ, सिख्स के साथ एंड द मराठास के साथ, किस तरह के रिवोल्ट रहे हैं. सी अबाउट द राजपूत्स. सी बेटा, औरंगजेब फेल टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द राजपूत whom the Mughals had befriended since the time of अकबर. अकबर उस चीज़ को रियलाइज़, उसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ नहीं कर पाया क्योंकि अकबर के टाइम से ही उनके बहुत फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं राजपूत के साथ. बट आफ्टर द डेथ ऑफ राजा जय सिंह ऑफ अंबर एंड राजा जसवंत सिंह ऑफ मेवाड़, रिलेशंस विद राजपूत बिगेन टू डिटोरिएट. दैट मीन्स डाउन कंडीशन में चलेंगे बिकॉज ऑफ हिज ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी. ऑर्थोडॉक्स आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट चैप्टर बेटा, दैट पर्सन्स हु आर फॉलोइंग द ट्रेडिशनल रूल्स रेगुलेशंस ऑल्सो. एंड द राजपूत्स टर्न इनटू बिटर फोज एंड Mughal intervention in the internal politics of Rathors of Marwar led to their rebellion. So after this beta, Sikhs. The relation between the Mughals and the Sikhs were strained when Guru Arjan Dev was executed by Jahangir for helping Prince Khusro. See beta, when the 10th Guru Tegh Bahadur protested against some measures of the emperor, he was arrested and brought to Delhi. That means सिक्स के साथ भी रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहे उनकी. जब भी उनके साथ फाइट हुई तो एम्परर्स को अरेस्ट करके दिल्ली ले जाया गया. एंड ही वॉज गिवन ए चॉइस बिटवीन डेथ और कन्वर्जन, कि या तो आप मरोगे या फिर आप अपना रिलीजन जो है कन्वर्ट कर लीजिए. दैट मीन्स सिख से मुस्लिम कन्वर्ट कर लीजिए. देन गुरु तेग बहादुर रिफ्यूज टू कन्वर्ट. गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया. एंड हिज मार्टरडम फोर्स द सिख टू अवेंज हिज डेथ. मतलब उनको ये माना गया कि वो सिख धर्म को ना छोड़ते हुए, उन्होंने छोड़ना उसे पसंद नहीं किया बल्कि अपनी डेथ को एक्सेप्ट किया. सो आफ्टर दिस बेटा, गुरु गोबिंद सिंह ऑर्गेनाइज द सिख्स इनटू ए मिलिटेंट फोर्स कॉल्ड द खालसा. तो गुरु गोबिंद सिंह ने एक अपनी पूरी फोर्स बनाई जिसका नेम था बेटा खालसा. देयर वर वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन खालसा एंड द मुगल्स. बहुत वायलेंट विवाद रहे हैं उनके आपस में. आफ्टर औरंगजेब्स डेथ द सिख्स वर एबल टू एस्टैब्लिश देयर ऑन एम्पायर. औरंगजेब की डेथ के बाद ही सिख अपने आप को और अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर पाए. सो आफ्टर दिस next is Marathas beta. See about Marathas. Aurangzeb was getting apprehensive about the growing power of Shivaji, so he sent Shaista Khan to fight against him. That means Aurangzeb sent Shaista Khan to fight against Shivaji. But Shivaji disguised as a marriage party with 400 soldiers stormed the camp and took everyone by surprise. वो बेटा at that time वो अपने 400 सोल्जर्स के साथ किसी पार्टी को अटेंड कर रहे थे, मैरिज पार्टी को, और सरप्राइजिंगली उन पे अटैक किया गया था. देन शाइस्ता खान बियरली मैनेज टू एस्केप एंड हिज आर्मी वाज डिफीटेड. और शाइस्ता खान बहुत मुश्किल से भागने में को मैनेज कर पाया और उसकी आर्मी जो थी वो हार गई. नेक्स्ट फिर क्या किया औरंगजेब ने, फिर से सेंट राजा जय सिंह टू कैप्चर शिवाजी एंड ब्रिंग हिम आगरा. उसने दोबारा से राजा जय सिंह को भेजा शिवाजी को लाने के लिए और वो उसे फिर आगरा में ले आए. एंड द फोर्ट ऑफ पुरंदर वाज बी सीज्ड. उस पुरंदर के फोर्ट में उसे सील करके रखा गया, बंद करके रखा गया. शिवाजी वाज कैप्चर्ड. ही वाज नॉट ट्रीटेड विद ऑनर एंड वाज अबाउट टू लीव द कोर्ट व्हेन ही वाज अरेस्टेड. शिवाजी को कैप्चर कर लिया गया और बट उसके साथ अच्छा सा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था, कोई ऑनर नहीं था उसके लिए. एंड वॉज अबाउट टू लीव द कोर्ट व्हेन ही वाज अरेस्टेड. और उसे कोर्ट में भेज दिया गया जब भी उसे अरेस्ट किया गया था. ही वाज पुट इन प्रिजन बट ही मैनेज टू एस्केप इन अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स. वो जेल में तो था बट वो जल्दी ही मैनेज कर पाया वहाँ से भागने के लिए. एंड आफ्टर दिस औरंगजेब फेल टू रिकैप्चर शिवाजी. और उसके बाद औरंगजेब हमेशा ही फेल रहा शिवाजी को कैप्चर करना, मतलब उससे दोबारा कभी भी
पकड़ नहीं पाया. आफ्टर दिस बेटा कैंपेन अगेंस्ट Deccan Sultanates. See beta, after suppressing Prince Akbar's rebellion, Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanate. Deccan area means south areas में जो Deccan areas थे वहाँ पे अपनी campaigning start की. After this, Bijapur was annexed in 1685 and Golconda is also annexed in 1687. And from 1698, Aurangzeb personally managed campaign in the Deccan against the Marathas who started guerrilla warfare. इन द नॉर्थ ईस्ट बेटा गुरिल्ला वारफेयर, गुरिल्ला की तरह वार करना एक पॉलिसी बनाई थी उसने. पॉलिसी का नेम था बेटा गुरिल्ला वारफेयर. वी विल रीड अबाउट this in the next class. In the northeast beta the Ahoms were defeated in 1663 but rebelled again in the 1680s. After this beta the death of Aurangzeb. See, when Aurangzeb died in AD 1707, the Mughal Empire was on the verge of disintegration. That means जब उसकी डेथ हुई मुगल एम्पायर बिल्कुल डिक्लाइनिंग स्टेज पे था बेटा, एंडिंग स्टेज यू कैन से. हिज कैंपेन्स इन द डेक्कन एंड एम्प्टीड द रॉयल ट्रेजरी. उसके कैंपेन्स की वजह से रॉयल जो खजाना था वो सब खत्म हो गया था. एंड हिज लॉन्ग स्टे इन द डेक्कन हैड गिवन राइज टू मेनी रिवोल्ट्स इन द नॉर्थ एंड ग्रोथ इन ट्रेड एंड कॉमर्स had led to emergence of new groups in the Deccan. These groups showed their loyalty to the regional powers. After this beta औरंगजेब वाज ए स्टांच सुन्नी मुस्लिम रूलर. बहुत सुन्नी मुस्लिम, बेटे मुस्लिम्स में भी अलग अलग पर्सनस होते हैं. जस्ट लाइक ये सुन्नी मुस्लिम टाइप के मुस्लिम था. ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल लाइफ लीड करते थे. एंड ही वाज पॉपुलरली नॉन एज द जिंदा पीर. उसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, और द लिविंग सेंट यू कैन से. एंड ही री इम्पोज जजिया. जजिया इज द टैक्स बेटा, द पोल टैक्स वी कैन से, विच द नॉन मुस्लिम्स हैड टू पे. जो नॉन मुस्लिम्स लोग थे उनको वो जजिया टैक्स पे करना पड़ता था. ग्रेजुअली द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब पुश द एम्पायर टुवर्ड्स डिक्लाइन. जो उसकी पॉलिसीज थी बेटा उसकी वजह से औरंगजेब का जो एम्पायर था टोटली डिक्लाइनिंग स्टेज मतलब डाउनिंग में आ गया. एंड एट द टाइम ऑफ डेथ द मुगल एम्पायर वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड. आफ्टर दिस बेटा something about the administration. See, the Mughal administration was a centralized monarchy and the king enjoyed absolute powers. पूरा king ही सारी की सारी powers को use करता था. See बेटा, in this first one is central administration. What is central administration? In this बेटा the king was the head of civil and military administration. किंग जो होता था वो सिविल और मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था. एंड ही वॉज असिस्टेड बाय ए नंबर ऑफ ऑफिशियल्स. बहुत सारे ऑफिशियल्स उसको असिस्ट करते थे, हेल्प करते थे. सी द फर्स्ट, द मीर बख्शी लुक्ड आफ्टर द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. द वजीर वॉज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. एंड द सदर आई सुदूर केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ ग्रांट्स एंड द डोनेशंस. एंड द खान आई समान लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड. दैट मीन्स ये पर्सनस डिवाइड किए हुए थे बेटा जो पर्टिकुलरली अलग अलग वर्क करते थे, एडमिनिस्टर करते थे हर वर्क को. सो द नेक्स्ट इज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. In this beta, the empire was divided into 15 provinces called सूबाज. पूरे एम्पायर को 15 प्रोविंसेस मीन्स एरियाज में डिवाइड कर देते थे जिसे सूबाज कहा जाता था. एंड ईच सूबा वाज गवर्न्ड बाय अ सूबेदार. हर सूबे का एक सूबादार था. एंड ईच सूबा वाज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. आगे इन सूबाज को फिर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया. एंड ईच डिस्ट्रिक्ट इनटू पैरागनाज. और फिर डिस्ट्रिक्ट्स को पैरागनाज में डिवाइड किया गया. सो ए नंबर ऑफ विलेजेस मेड अप अ परागना. परागना मीन्स कुछ विलेजेस को कलेक्ट करके बनाना. सी बेटा, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द टाउन वाज द कोतवाल. एंड कोतवाल परफॉर्म बोथ सिविल एंड पुलिस ड्यूटीज़. जो कोतवाल की ड्यूटीज़ होती है लाइक क्रिमिनल्स को पकड़ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ऑल दिस. आफ्टर दिस बेटा द रेवेन्यू पार्ट of at that time. See, the main source of revenue was the land tax paid by the peasantry. Peasants paid taxes through the rural elites.
दैट इज़ द हेडमैन और द लोकल चिफ्टियन. दैट मीन्स जो पीजेंट्स पे करते थे रूरल इलाइट्स को, मेन पर्सनस को, वो कौन होते थे? वो तो हेडमैन या फिर लोकल चिफ्टियन. एंड दे वर रेफर टू एज जमींदार, जिन्हें जमींदार भी कहा जाता था. सी बेटा, राजा टोडरमल अकबर्स का रेवेन्यू मिनिस्टर था. अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम. एक नया रेवेन्यू सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया, called Todermal Bandobast. The name was Todermal Bandobast. Under this system beta, the land was measured and divided into 3 categories. लैंड को मेज़र करके उसे 3 पार्ट्स में, कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. सी गुड, मिडल एंड बैड. दैट मीन्स लैंड की किस टाइप की क्वालिटी है, वो गुड है या मिडल है या दैट मीन्स बैड क्वालिटी है. लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. लैंड रेवेन्यू हमेशा फिक्स किया जाता है किस पे? ऑन द अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, की कितनी फर्टिलिटी है उस लैंड एरिया की. एंड द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस. और रेवेन्यू फिक्स किया गया 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस. इट कुड बी पेड ईदर इन कैश और इन काइंड, कि या तो उसको कैश पे किया जाए या और किसी तरीके से उसको पे किया जाए. सी बेटा, द रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड वाज मच लेस कंपेयर टू लैंड. रेवेन्यू बहुत कम था ट्रेड के पर्पज से. ट्रेड वाज कैरिड ऑन द चाइना, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप, एंड द मेन आइटम्स फॉर एक्सपोर्ट वर टेक्सटाइल, स्पाइसेस, इंडिगो एंड द सॉल्ट. Todermal carried out a survey of crop yields, prices and areas cultivated for a 10-year period. On the basis of this data beta, tax was fixed on each crop. That means वो एक सर्वे किया करता था लास्ट के 10 ईयर्स को लेके, 10 ईयर्स पीरियड को, उसके बिहाफ पे उसने ये डाटा मेंटेन किया था. और फिर टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप, और हर क्रॉप के ऊपर उसने टैक्स फिक्स किया था बेटा. एंड इन दिस ऑल्सो सी ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल्स. कुछ रेवेन्यू सर्कल्स में भी डिवाइड किया था लाइक इंडिविजुअल क्रॉप्स. और दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज कॉल्ड द जब्त. एंड इन दिस सिस्टम वॉज प्रिविलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड, जिसमें खुद उनके मुगल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो सर्वे किया करते थे लैंड के लिए. एंड these peasant revolts became common after the death of the Aurangzeb. So the last topic of this chapter is beta Mansabdar and the Jagirs. See, the most important feature of the Mughal administration was the Mansabdari system beta. And who introduced the system? The Akbar introduced this system. Mansab means beta a rank or a position, and the Mansabdar was the official who held this rank. See the features of this system beta. It was a grading system used by Mughals to fix rank, salary and military responsibilities. एक तरीके का ग्रेडिंग सिस्टम था कि जिसमें मुगल्स ने पर्सनस के अकॉर्डिंग उनका रैंक, उनकी सैलरी और उनकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड की हुई थी. जस्ट लाइक न्यूमेरिकल वैल्यू से हम कह सकते हैं कॉल्ड कि हायर हो तो उसकी सैलरी ज़्यादा, उसकी पोजीशन कोर्ट में ज़्यादा तो उसके लिए सैलरी भी उसकी ज़्यादा. And second is the Mansabdar's military responsibility required him to maintain a fixed number of cavalrymen. That means जो मनसबदार का मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ उनको एक फिक्स नंबर ऑफ कैवलरी मैन मीन्स घुड़सवार उनको साथ दिए जाते थे. और वो जब मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन टू फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर horses branded and then received money to pay them as salary, कि उनको अपने साथ लेके चलते थे और वो horses भी branded हुआ करते थे और उसके लिए भी उन्हें money पे की जाती थी as a salary. And third point is beta mansabdar received their salaries as revenue assignments called jagirs. mansabdar कैसे अपनी salary receive करते थे? as jagirs, मतलब which were like iktas in the Sultanate period, which we have read beta in the last chapter. But unlike muktis, holders of iktas, most mansabdar did not actually reside in or administer their jagirs. That means वो particularly ज़रूरी नहीं था कि वो वहीं रहते थे और वहीं से administer करते थे. They only had rights to collection of revenue which was done by their officials, which the mansabdar themselves served in the some other areas. And the fourth point beta, in Akbar's reign, the Jagirs were carefully assessed. Hence, the revenues were roughly equal to the salary of the
मनसबदार, दैट मीन्स जो अकबर के टाइम पीरियड की जो जागीर थी वो केयरफुली असेस की गई थी और पर्टिकुलरली वही रेवेन्यू सिस्टम जो इक्वल रफली वही हर मनसबदार को दिया जाता था जो एट द टाइम ऑफ अकबर के टाइम पीरियड से चलता आ रहा था. सी बेटा, इन दिस अकॉर्डिंग टू द मनसबदारी सिस्टम कुछ रूल्स रेगुलेशंस आर हेयर. सी फर्स्ट वन इज एवरी ऑफिसर वाज गिवन ए मनसब और रैंक. हर ऑफिसर को एक रैंक और पोजीशन दी हुई थी. जस्ट लाइक ए 5,000 जो मनसबदार थे हैड टू मेंटेन 5,000 ट्रूप्स. सेकेंड पॉइंट, ए मनसबदार हैड टू सप्लाई टू द किंग द फिक्स नंबर ऑफ ट्रूप्स वेन एवर नीडिड एट द टाइम ऑफ वॉर. कि मनसबदार को किंग को हमेशा जितने फिक्स नंबर ऑफ ट्रूप्स, मतलब एक ट्रूप अगर 5,000 पर्सनस का है, सोल्जर्स का है, तो उसे जितनी वॉर पे ज़रूरत है उस टाइम पे उसको मनसबदार को पूरे ट्रूप्स उसे भेजने पड़ते थे. ट्रूप्स मीन्स ग्रुप्स यू कैन से. एंड थर्ड वन इज़ द मनसबदार वर पेड थ्रू जागीर्स. मनसबदार को अभी हमने रीड किया कि उन्हें किस तरीके से पे किया जाता था, थ्रू जागीर्स. जागीर्स मीन्स प्लेसेस, लैंड एरियाज. एंड द जागीर्स वर अलॉटेड अकॉर्डिंग टू द रैंक ऑफ द मनसब. जो मनसब का रैंक है, जो मनसबदार का रैंक पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग उसे अलॉट होता था. एंड जागीर्स मेन दैट ही वॉज ग्रांटेड लैंड एंड नॉट कैश. कैश में नहीं, लैंड की फॉर्म में वो लेते थे. And after this, a mansabdar could be shifted from one place to another. This prevented him from becoming too powerful. दूसरी जगह रह के अगर वो कंट्रोल करते थे तो वो ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे. And generally a person was appointed at a low rank. He was gradually promoted according to the service he provided. जैसे जैसे वो सर्विस प्रोवाइड करता था उसे प्रमोट कर दिया जाता था. सबसे पहले उसे लो रैंक पे रखा जाता था. And in addition to soldiers and houses, a fixed number of elephants, camels had also to be maintained by the mansabdars. और सोल्जर्स के साथ साथ उन्हें हाउसेज, उसे फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कैमल्स ऑल्सो दिए जाते थे मनसबदार की पोजीशन को के अकॉर्डिंग. एंड द मनसब वाज नॉट हेरिडेटरी. हेरिडेटरी मीन्स अगर उसका फादर है तो ज़रूरी नहीं है कि वही मनसबदार होगा. व्हेन ए मनसबदार डाइड हिज जागीर कुड बी टेकन बैक एंड अलॉटेड टू समवन एल्स. अगर किसी मनसबदार की डेथ हो जाती थी बेटा तो ये उसकी जागीर उससे वापस ले ली जाती थी एंड अलॉटेड टू समवन एल्स. So this was your chapter beta, the Mughal Empire, which we have done now. Now in the next part beta we will do the exercise and the question answers. Thank you. Have a nice day.